Good morning, students. Today we are going to discuss public domain software versus proprietary software. Public domain software is free and can be used without restriction. So, public domain software uh, is free and can be used without restriction. That means we can use without restriction. There is no restriction on public domain software. The term public domain software is often used incorrectly to include free software that is nevertheless copyrighted. Public domain software is, by the way, its very nature outside the scope of copyright and licensing. On the contrary, there is proprietary software which is neither free or nor available for public. These there is a proper license attached to it. User has to buy the license in order to use it. So in case of proprietary software or licensed software, we have to purchase a license. We have to buy a license in order to use it. But in case of public domain software, we doesn't need any software license. Yeah, property software license. We can use it freely, and there is no restriction on any type of restriction on software. But in case of proprietary software, there is a certain restriction. We cannot redistribute it. We cannot install on another system if I already installed on one system. Then term privacy. Privacy means protection of personal information given online while carrying out some online activity or transaction. So privacy means protection of आपकी personal जो information है protect कर रहे हैं online. तो privacy is the protection of personal information given online. Online जो भी information आप दे रहे हो उसकी personal information जो दे रहे हो वहाँ पे उसका protection करना वहाँ पे that is privacy. So both the buyer and the seller must provide the correct information to each other pertaining to transaction that is taking place. तो वहाँ पे जो बायर एंड सेलर जो भी है वहाँ पे वो आपस में जो इन्फॉर्मेशन है वहां पे करेक्ट इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करे वहां पे in e-commerce company must clearly state how it intends to use the customer's data collected this way or whether the customer can restrict the use of personal information. In case of e-commerce, it is related to company's policy on the use of user data. क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कंपनीज की वेबसाइट पे लॉगिन करते हैं वहां पे अपनी ईमेल आईडी मोबाइल नंबर अपना नेम सर्टेन डिटेल्स अपने शेयर करते हैं वहां पे तो वो पर्सनल डिटेल्स है वहां पे आपकी तो वो कितने हद तक हम यूज कर सकते हैं वहां पे how intends it to use how it intends to use the customer data collected this way तो वो आपकी लोकेशन आप क्या बाई कर रहे हो आपकी यूजर प्रेफरेंसेस आपका आईडी ईमेल आईडी पासवर्ड ईमेल आईडी वहाँ पे आपका जो कॉन्टैक्ट नंबर है फ़ोन नंबर मोबाइल नंबर वो भी लेता है वहाँ पे तो कितने हद तक वहाँ पे वो उसको यूज़ कर सकता है और रेस्ट्रिक्ट कर सकता है वहाँ पे तो हम लोग भी डिपेंड करता है और वेदर द कस्टमर कैन रेस्ट्रिक्ट द यूज ऑफ पर्सनल इन्फॉर्मेशन हम भी रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं वहाँ पे कोई और यूज़ नहीं करे वहाँ पे तो प्राइवेसी इज द कंज्यूमर कंसेंट whether the consumer is given a choice to decide what the information can and cannot be used for तो हम लोग कंसेंट भी दे सकते हैं कि हमारी कौन कौन सी पब्लिकली अवेलेबल होगी कौन सी नहीं होगी जैसे हम फेसबुक पे डालते हैं तो वहाँ पे हम इंफॉर्मेशन जो भी है पोस्ट वगैरह है उस पे प्राइवेसी सेटिंग करते हैं कि कौन कौन किस किस को ये व्यू होगा किस किस को नहीं होगा वहाँ पे तो हम चाहे तो पर्टिकुलर यूजर्स को दे सकते हैं वहाँ पे तो चाहे तो ग्रुप ऑफ यूजर्स दे सकते हैं वहाँ पे चाहे तो अपने फ्रेंड्स को दे सकते हैं फ्रेंड ऑफ फ्रेंड्स या only to me everybody everyone so usually when the proper security system are in place user will not mind sharing the information necessary for transaction to take place so अगर प्रॉपर सिक्योरिटी है वहां पे तो कस्टमर को कोई प्रॉब्लम नहीं है वहां पे बट द कंसेंट विल रिलेट टू वेदर दिस इंफॉर्मेशन कैन बी फर्दर एक्सप्लॉइटेड तो कंसेंट भी लेना जरूरी है कि आपकी जो भी इंफॉर्मेशन है वो किन किन के साथ में शेयर की जाएगी जैसे हम कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं सिस्टम में चाहे मोबाइल में तो वो आपके कुछ कंसेंट लेता है कि इट विल यूज योर कैमरा इट विल शेयर योर लोकेशन तो हम ओके करते हैं तभी वो आपकी इंस्टॉल होती है और वहां पे देन आपकी इन्फॉर्मेशन कुछ कुछ वेबसाइट्स या कुछ आपकी वेब एप्लीकेशन के लिए भी आपको चाहिए वहां पे the merchant or the seller must clearly state about how the user data will be used in terms and condition of its site application तो मर्चेंट और सेलर जो भी है वहाँ पे क्लियरली स्टेट कि हाउ कैसे आपका यूजर को डेटा जो यूज करेंगे वहाँ पे क्या टर्म्स एंड कंडीशन उसके अप्लाई होगी तो मर्चेंट और सेलर मस्ट इंश्योर दैट द यूजर हैज गॉन थ्रू द टर्म्स एंड कंडीशन गिवन ऑन इट्स साइट्स एप्लीकेशन प्रायर टू मेकिंग एनी ट्रांजेक्शन
तो आप कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होती है, वहाँ पे आपको पहले शो करता है कि टर्म्स एंड कंडीशन है, वहाँ पे ये पेमेंट आपके पे होगा, उसके बाद में आपको फॉरवर्ड किया जाएगा. The merchant must ensure the data user about the data safety by implementing proper data safety and security measures such as HTTPS protocols and other security mechanisms so that user data is safe from hackers too. जनरली क्या होता है, जो भी आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स करते हैं वहाँ पे, तो वो जनरली क्या होता है एनक्रिप्टेड फॉर्म में होता है, डायरेक्ट आपके प्लेन टेक्स्ट की फॉर्म में नहीं होता, एनक्रिप्टेड फॉर्म में होता है. तो यूजर मस्ट गो थ्रू द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द सेलर merchant site before providing any sensitive information. Make sure that the site is safe site by checking HTTPS protocol and padlock etc. तो we have to check, यहाँ पे चेक करना होता है हमें कि यहाँ पे जो padlock given है वो आपकी लॉक जो है उस पर क्लिक करते तो कुछ सेटिंग्स दिखाता है, यहाँ पे कुछ ऑप्शन आ जाएंगे वहाँ पे, तो उसमें चेक करना है कि साइट सिक्योर है या नहीं है वहाँ पे. और आपको ये भी चेक करना है कि HTTPS प्रोटोकॉल यूज कर रहे हो, देन ही आपको वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन शेयर करनी है, अदरवाइज नहीं करनी है वहाँ. To respect the privacy, the merchant or seller must clearly state about how the user will data will be. तो इसी तरह क्योंकि हम लोग कई वेबसाइट्स पे जाके पेमेंट करते हैं तो वहाँ पे हमारा डेबिट कार्ड नंबर, पिन नंबर, कई बार कुछ डिटेल्स, जो डेबिट कार्ड की कार्ड्स की डिटेल, क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स दूसरों के साथ शेयर हो जाती है वहाँ पे. तो हमें ध्यान रखना है कि वो कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं. अगर वो एनक्रिप्ट नहीं कर रहा है तो आपका डायरेक्टली डेटा प्लेन टेक्स्ट की फॉर्म में उनकी साइट्स पे सेव हो जाएगा. फिर ऑनलाइन फ्रॉड कमिटेड यूजिंग इंटरनेट इज कॉल्ड ऑनलाइन फ्रॉड. तो अगर इंटरनेट का यूज कर रहा है, हो रहा है वहाँ पे फ्रॉड करने में, तो देन that is known as online fraud. Online fraud may occur in many forms such as non-delivered goods, non-existing company, stealing information, fraudulent payment, etc. The first thing, non-delivered goods. तो दैट मीन्स जिन गुड्स को डिलीवर नहीं किया गया है, पेमेंट तो आपसे ले लिया बट डिलीवर नहीं किया गया. सेकंड थिंग, जो कंपनी है उसकी वेबसाइट तो बन गई, वहां पे लोग वहां पे ऑर्डर कर रहे हैं बट वो कंपनी एग्जिस्ट नहीं करती, तो नॉन एग्जिस्टिंग कंपनीज. स्टीलिंग इन्फॉर्मेशन, आपकी इन्फॉर्मेशन स्टील करने के लिए कुछ वेबसाइट्स बनी, वहां पे कुछ ऑफर्स आपको शो कर रहा है और आप वहां पे जैसे व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं कई बार कि आप 10 लोगों के साथ शेयर करो तो आपको ये आईफोन मिलेगा, आपको ये चीज मिलेगी, ये गुड फ्री बीज मिलेंगे. जब शेयर करते हैं व्हाट्सएप पे, दैट मीन्स आपने 10 लोगों के कॉन्टेक्ट उसके साथ में शेयर कर दिए हैं उस कंपनी के साथ में. तो फ्रॉडुलेंट पेमेंट एक्सेट्रा, तो पेमेंट भी, फ्रॉड पेमेंट्स भी करवा दिया आपसे, कोई आपको लिंक भेजेगा, आपको पेमेंट हमसे ट्रांसफर करके आपके अकाउंट में, आप इन्फॉर्मेशन डालते हैं, आपके अकाउंट में जाने की वजह वहां से विड्रॉ हो जाते हैं पैसे, तो डिपॉजिट होने की जगह. While the first two types of frauds can be countered by setting up from official body ensuring that the validity of e-commerce companies and promise delivery of goods, the last two types of are more frightening. So the example of such frauds include credit card frauds, identity theft. In credit card fraud, the credit card details of user are stolen from his or her online activity, and then some payment frauds are carried out with this stolen information. First two जो आपके जो है वो तो है, आपको एक अथॉरिटी डिफाइन कर दो वहाँ पे कि जो कंपनी है वहाँ पे जिसकी वेबसाइट एग्जिस्ट कर रही है वहाँ पे क्या वो है या नहीं है, तो पहले आप चेक कर लें, फिजिकल वेरिफिकेशन कर लें वहाँ पे, अथॉरिटी क्रिएट करें, वो आपको चेक करें कि ये एग्जिस्टिंग है या नहीं, ये कंपनी ये शॉप एग्जिस्ट करती है या नहीं करती. बट सेकंड लास्ट टू जो है आपके, जहाँ पे स्टीलिंग इन्फॉर्मेशन, फ्रॉडुलेंट पेमेंट, वहाँ पे कोई अथॉरिटी नहीं बैठ सकती. तो यहाँ पे क्रेडिट कार्ड के फ्रॉड में क्या होगा, आप कोई भी ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हो वहाँ पे, तो कुछ वेबसाइट पे 100 रुपए का पेमेंट किया, कोई ऑफर आ गया आपको 10,000 की चीज आपको 100 रुपए में मिल रही है, तो आप क्या करेंगे, वहाँ पे अपनी कार्ड की इन्फॉर्मेशन सेव करें. तो वो क्या करें, आपकी कार्ड की इन्फॉर्मेशन अपनी वेबसाइट पे सेव कर रहे हैं, एंड देन उससे आपके क्रेडिट कार्ड फ्रॉड्स या पेमेंट फ्रॉड्स आपके कैरिड आउट करता है वहाँ पे. तो इस तरह से आपकी इन्फॉर्मेशन स्टील करके वहाँ पे उसने क्या क्या कार्ड के नंबर सब कुछ डिटेल निकाल ली वहाँ पे, और देन फ्रॉड कर रहा है. The identity theft is also very scary. By stealing someone else's online identity, fraudulent posts are posted or some other malicious dangerous activity is carried out. जनरली क्या होता है, आइडेंटिटी थेफ्ट का मतलब है वहाँ पे किसी और की जो आइडेंटिटी है, वहाँ पे आईडी है, वो अपनी मानना. दैट मीन्स वो क्या करता है कि कोई भी मैसेज सेंड कर रहा है, आपका नाम लेके वहाँ मैसेज सेंड कर रहा है, तो आपकी आइडेंटिटी लेके वहाँ मैसेज सेंड कर रहा है कि दो यूजर आपकी बात कर रहे हैं वहाँ पे, जैसे एलिस एंड बॉब आर कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर. अब बीच में एक डार्थ आता है, जो हैकर है वहाँ पे, क्रैकर है वहाँ पे, तो डार्थ क्या करता है, एलिस की जो आइडेंटिटी है वो डार्थ बन जाता है एलिस वहाँ पे, और मैसेज सेंड कर रहा है बॉब को, और बॉब आपके बॉब के लिए वहाँ पे बन जाता है, बॉब के लिए एलिस बन गया और एलिस के लिए बन गया बॉब वहाँ पे.
तो जो भी मैसेज बॉब से आ रहे हैं वो डार्थ के थ्रू एलिस के पास जा रहे हैं, और जो एलिस से मैसेज आ रहे हैं वो डार्थ से होते हुए आपके बॉब के पास जा रहा है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होगी आपकी जनरली, कि वो बीच में एक मीडिएटर की वर्क कर रहा है, आपके जो भी मैसेजेस है पोस्ट है उनको मैलिशियस एक्टिविटी करने के लिए या फिर चेंजेस परफॉर्म करेगा, डिलीट करेगा वहां पे कुछ डेटा। क्या चीज है? हाँ, आधार कार्ड बाकी है, आधार कार्ड नंबर नहीं बोला हुआ, आधार कार्ड बाकी हुआ, पूछ बाकी टीसी तो दी है, टीसी दी गई, टीसी वाली फाइल अपन बोली है, तब जो नया एडमिशन है ये मैं बोली फॉर्म इंशाल्लाह मुझे एक टीसी है कि नहीं है। सो बाय स्टीलिंग समवन ऑनलाइन आइडेंटिटी चुराना वहां पे, कि मैं मैसेज सेंड कर रहा हूँ एज अ कुछ और बन के वहां पे, बस उसको लगता है कि मैसेज सारे उसी से आ रहे हैं, तो वो तो यहाँ पे जो है आइडेंटिटी थेफ्ट करना, वहां पे आपकी फेक आईडी बना दे, वहां पे आपकी सारी फोटोज वगैरह लेके, वीडियोस लेके, आपकी इन्फॉर्मेशन लेके वहां पे आपकी एक दूसरी आईडी बनाए, वहां पे अपने आपके फ्रेंड्स को मैसेज सेंड करना स्टार्ट करे, तो वो भी क्या है, ऑनलाइन आइडेंटिटी थेफ्ट ही, आपकी आइडेंटिटी उसने ले ली वहां पे। So, measures to stop these frauds may include: first, monitoring official body that ensures the sanctity of e-commerce company and delivery of goods delivery services are as promised. तो एक मॉनिटरिंग ऑफिशियल बॉडी बन जाएगी फर्स्ट टू केस के लिए, तो आपकी कि जहाँ पे कंपनीज वगैरह ई कॉमर्स कंपनी है, चाहे वो गुड डिलीवरी कर रही है या नहीं कर रही, तो वो सब कुछ चेक कर सकता है वहाँ पे। Strong security mechanism by e-commerce site and payment gateways to prevent stealing of crucial information. तो जो भी आपके थर्ड पार्टी वहाँ पे पेमेंट गेटवे है वो आपके सिक्योर हो इतना कि आपकी इन्फॉर्मेशन किसी के साथ में शेयर ना हो वहाँ पे, क्योंकि वो आपके जो है प्रोटोकॉल जो यूज करे, HTTPS प्रोटोकॉल यूज करे, सिक्योर हो वहाँ पे ट्रांजेक्शन सारा, तो स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी मैकेनिज्म वहाँ पे होना चाहिए। दैट मींस HTTPS प्रोटोकॉल यूज करे उस जब आपकी ये आपकी जो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है, जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है, जब शेयर करता तब। तो अगर आपको लगता है कि वहां पे ब्रीच हो रहा है तो आप उस वेबसाइट को यूज ही नहीं करें, तो जेन्युइन नहीं लगे आपको वेबसाइट तो उस वेबसाइट पे पेमेंट ना करें। वहां पे जो आपको बहुत ज्यादा ऑफर दिखता है कि 10,000 की चीज 100 रुपए मिली, तो पॉसिबल नहीं है, तो दैट मीन्स वो फ्रॉड हो रहा है वहां पे। ऑफिशियल गाइडलाइन एंड सेफगार्ड्स ऑन सेलिंग ऑफ यूजर डेटा टू थर्ड पार्टी। जनरली क्या होती है, कुछ कंपनीज आपका डेटा ऑफर्स के थ्रू आपका डेटा कलेक्ट करती है, देन थर्ड पार्टी को वहां पे आपका डेटा सेल आउट कर देती है, वहां पे कितना यूजर्स का मेरे पास डेटा है, फोन नंबर्स वगैरह है, एंड देन क्या होता है आपके पास सडनली इंश्योरेंस के मैसेजेस आते हैं, फालतू के मैसेजेस आते हैं, कॉल्स आती है वहां पे, लोन्स के लिए कॉल आती है, तो वो ऐसे ही आती है क्योंकि आपका जो डेटा आपने कहीं पे शेयर किया और उस पर्टिकुलर वेबसाइट ने आपका डेटा किसी और वेबसाइट पे सेल आउट कर दिया। एंश्योर सेफ साइट वाइल एंटरिंग क्रूशियल इन्फॉर्मेशन। आपको सेफ्टी साइट चेक करनी है, तो वहां पे क्या चेक करते हैं हम, तो हमें चेक करना है वहां पे तो देखते हैं यहाँ पे, देखो टॉप पे देखेंगे, यहाँ पे इन क्रोम हम देखते हैं यहाँ पे एक लॉक बना हुआ है, इसको बोलते हैं पैड लॉक। इस लॉक पे क्लिक करता हूँ तो इन्फॉर्मेशन होता है कनेक्शन इज सिक्योर। दैट मीन्स जो कनेक्शन है यहाँ पे वो सिक्योर है यहाँ पे। सो ये चीज हमें ध्यान रखनी है कि क्या चीज है यहाँ पे, कनेक्शन अगर इनसिक्योर लिखा हुआ था देन आप ध्यान रखें क्या चीज आपको, क्या इन्फॉर्मेशन जो है, योर इन्फॉर्मेशन फॉर एग्जाम्पल पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड नंबर इज प्राइवेट व्हेन इट सेंड टू दिस साइट। तो आपके जो भी क्रेडिट कार्ड नंबर वगैरह होंगे वो प्राइवेट होंगे। लोकेशन अलाउ कर रखा, तो आप चाहे तो उसको ब्लॉक भी कर सकते हैं लोकेशन। सर्टिफिकेट वैलिड है यहाँ पे, कुकीज 124 इन यूज, और साइट सेटिंग्स। तो इस तरह से यहाँ पे चेक करें कि आपकी जो वेबसाइट्स है सिक्योर है या नहीं है वहाँ पे। So type the URL of website in the address bar of browser on your own. आपके पास कोई भी लिंक आता है उसको क्लिक ना करके आप पर्टिकुलर वेबसाइट का लिंक URL जो है टाइप करें वहां पे, जनरली टाइप पर्टिकुलर URL। So do not click on links that takes to this website, or do not cut copy of the link of this website and paste it. Type URL on your own in address bar of the web browser. So you have to write URL, टाइप करना है हमें URL को वहां पे, एंड देन ओके करना, क्लिक करना वहां पे एंटर। अदरवाइज आपको किसी भी लिंक पे क्लिक नहीं करना है वहां पे। जनरली हो सके तो गूगल पे सर्च करें वहां पे और प्रॉपर जो लिंक मिले उस पर क्लिक करके आप फॉरवर्ड करें। तो जो आप लिंक आपके मेल्स पे या फिर व्हाट्सएप पे आ रहे हैं उन लिंक पे डायरेक्ट क्लिक नहीं करें, क्योंकि वो
फेक लिंक हो सकते हैं वहां पे। Ensure that the address contain HTTPS and padlock sign. तो एड्रेस कंटेन HTTPS हो वहां पे, और padlock लॉक मैंने अभी जो बताया आपका। When this website get loaded, before you start typing any information, ensure that website address, a safe site URL starts with HTTPS and not with HTTP. Also it shows a closed padlock, closed padlock भी यहाँ पे शो करेगा आपके। और अगर आई लिखा हुआ आ रहा है, that means connection is insecure। और padlock शो कर रहा है वहां पे, लॉक की तरह शो कर रहा है, तो that means नेक्स्ट टर्म जो है आपकी वो है साइबर क्राइम। साइबर क्राइम इज एनी क्रिमिनल ऑफेंस दैट इज फैसिलिटेटेड बाय और इन्वॉल्व द यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन सिस्टम इंक्लूडिंग एनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, कंप्यूटर और द इंटरनेट। The term cybercrime is a general term that covers crimes like phishing, credit card fraud, illegal downloading, industrial espionage, child pornography, cyberbullying, cyber stalking, cyber terrorism, creation and distribution of viruses, spam and so on. तो साइबर क्राइम क्या है वहाँ पे? एक क्रिमिनल ऑफेंस है वहाँ पे, दैट मीन्स अपराध है वहाँ पे, दैट इज फैसिलिटेटेड बाय और यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन सिस्टम, दैट मीन्स by use of electronic device, computer, mobile device, internet, etc. सो अगर हम इंटरनेट और कंप्यूटर को यूज करके कोई भी ऑफेंस कर रहे हैं वहां पे, दैट इज नोन एज साइबर क्राइम। सेकंड टर्म इट इंक्लूड फिशिंग, मींस जहां पे फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन आपकी शेयर की जा रही है, कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपकी शेयर की जा रही है। क्रेडिट कार्ड फ्रॉड्स, तो वहां पे क्रेडिट कार्ड की फ्रॉड्स हो रहे हैं। इलीगल डाउनलोडिंग, दैट मींस आप कोई लीगल वहां पे सॉफ्टवेयर है, प्रॉपर्टी, उसको इलीगल वे से डाउनलोड करके वहां पे उसको क्रैक करके यूज कर रहे हैं, तो वो भी एक इलीगल है वहां पे। इंडस्ट्रियल एस्पेनिज, चाइल्ड पोर्नोग्राफी, साइबर बुलिंग, साइबर स्टॉकिंग, साइबर टेररिज्म, ये सब भी है वहां पे। Next is information theft. While working online, you often enter and create information related to you. We can create information क्योंकि हम कई बार कहते हैं कुछ इंटरनेट ऑनलाइन सर्च भी करते हैं, तो हमारी सारा डेटा वहाँ पे उस पर्टिकुलर वेबसाइट पे सेव हो जाता है कि आपने क्या क्या सर्च किया, क्या क्या नहीं किया वहाँ पे। यू ऑफन एंटर information related to payment and even about your home address etc. हम ऑनलाइन वेबसाइट पे जहाँ पे शॉपिंग कर रहे हैं तो वहाँ पे हमारा एड्रेस भी होता है, वहाँ पे हम अपनी क्रेडिट कार्ड की या डेबिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन भी सेव रखते हैं, जहाँ पे हम रेगुलरली ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं या फिर हम कोई भी बिल पेमेंट करते हैं, तो वहां पे क्या करते हैं, हम बिल पेमेंट जो वेबसाइट्स होती है वहां पे अपना यूजर नेम पासवर्ड डाल के रखते हैं हमेशा। वहां से हमारा जो यूजर नेम पासवर्ड वो तो उसके पास है ही है वहां पे, साथ में अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी भी हम उसके साथ में रजिस्टर करवा देते हैं। थर्ड थिंग जो हम करते हैं वहां पे क्या करते हैं कि अपना जो शिपिंग वेबसाइट से ऑनलाइन जहाँ पे शॉपिंग करते हैं हम लोग, तो वहां पे क्या अपना होम एड्रेस भी डाल देते हैं, दैट मीन सारी इन्फॉर्मेशन उनके पास है। आप तो while shopping information must be safe and must not be fall into wrong hand। तो जब शॉपिंग करें तो हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो सेफली रहे, वहां पे किसी और के साथ में शेयर नहीं हो आपकी इन्फॉर्मेशन जो भी है वहां पे। तो वन शुड बी केयरफुल while working online as there are many ways so through which thieves can obtain your personal information। अब बहुत सारे वेज हैं, हो सकता है उस पर्टिकुलर वेबसाइट के सर्वर को वहां पे हैक कर ले वो। तो फिशिंग इज द प्रैक्टिस ऑफ अटेम्प्टिंग टू एक्वायर सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन फ्रॉम इंडिविजुअल over the internet by means of deception। Information typically targeted by phishing schemes include password, username, blank account information, and social security number। The term phishing is a play on phishing. Hackers use various form of bad in order to catch the victim। तो जाल फेंका जाता है आपके लिए, एंड देन आप उसको लिंक, जैसे आपके पास लिंक आया वहां पे कि आप ये लिंक 10 लोगों के साथ में व्हाट्सएप पे शेयर करेंगे, तो क्या होगा, आपको आपको कुछ मिलेगा वहां पे, आईफोन मिलेगा, कई बार किस किस केसेस में कुछ और प्राइस बनी रखते हैं वहां पे कि 10,000 रुपीज अर्न करोगे आप, आपको टी शर्ट आएगा फ्री में उस कंपनी एडिडास की तरफ से। तो वो सब क्या होता है वहां पे कि आपको रिसेप्शन भेजा, वहां पे रिसेप्शन किया, आपको रिसेप्ट किया, वहां पे फिशिंग की जाल फेंका वहां पे आर, एंड देन आपको कैच कर रहे हैं वहां। देन तो क्या करते हैं, आप पर्टिकुलर लिंक को क्लिक करते हैं और वो लिंक खुलता है, वहां फेसबुक जो दिखता है कि लॉगिन विद फेसबुक, आप लॉगिन के फेसबुक के पासवर्ड यूजर नेम डाल देते हैं, दैट मींस आपकी फास्ट फेसबुक के जो यूजर नेम पासवर्ड है उसके पास चले गए वहां पे आप। तो इट इज क्रिमिनली fraudulent process of attempting to acquire sensitive information such as username, password, credit card information, account data। In phishing, an imposter
send you, yeah, uses an authentic looking email or website link to trick recipients into giving out sensitive personal information. For instance, you may receive an email from your bank asking to update your information online by clicking at a specific link. Though it appears genuine, you may be taken to a fraudulent site where your all information is obtained and later used for cybercrime and frauds. तो क्या होता है फिशिंग वहां पे? फ्रॉडस्टर क्या करते हैं? फ्रॉडस्टर वहां पे जब ये काम करते हैं वहां पे हैकर्स और क्रैकर्स वहां पे फेक वेबसाइट बनाते हैं। फेक वेबसाइट करने के बाद में पर्टिकुलर फिशिंग ईमेल्स विद लिंक टू फेक वेबसाइट, तो बहुत सारे लोगों को मैसेज सेंड करते हैं वहां पे और कुछ ना कुछ वहां पे इस तरह से रिसेप्शन सेंड किया जाता है कि आपको लगता है कि वो जेन्युइन वेबसाइट्स है। द विक्टिम क्लिक ऑन लिंक इन ईमेल बिलीविंग इट्स इज लेजिटिमेट, तो हम क्लिक करते हैं वहां पे हमें लगता है कि वेबसाइट जेन्युइन है। वहां पे दे एंटर पर्सनल इन्फॉर्मेशन और वहां पे जाके हम अपनी कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर कर देते हैं। तो फ्रॉडस्टर कंपाइल द स्टोलन डेटा एंड सेल इट ऑनलाइन और यूज इट्स देमसेल्फ। ये प्रॉब्लम भी आती है कि वहां पे वो खुद भी यूज कर सकता है और किसी को बेच भी सकता है। तो स्कैम, ऑनलाइन स्कैम, any fraudulent business practice that extract money from an unsuspecting ignorant person is called a scam. The internet has become another primary source of scam. Committed over the internet are called online scam. तो पैसे मनी जहाँ पे गड़बड़ घोटाला होता है वहां पे तो वो है दीज आर ऑनलाइन स्कैम्स जहाँ इंटरनेट के ऊपर। और ये सारी इंफॉर्मेशन हम लोग खुद ही अपनी, फॉर एग्जाम्पल मृणालिनी wanted to gift her friend a customized bracelet whose pictures she saw of a photo sharing website that listed the design and cost of customization. Mrinalini, Mrinalini happily transferred an advance payment of 22,450 to account mentioned on the site and was promised to a date of delivery. तो उसने क्या किया, एक पर्टिकुलर फोटो देखी उसको एक पर्टिकुलर वेबसाइट पे, शेयरिंग वेबसाइट पे, एंड देन उसने क्या किया, हैप्पीली उस वेबसाइट पे जाके वहां पे उसने पर्टिकुलर डिजाइन का जो ब्रेसलेट था उसके लिए ऑर्डर किया। वहां पे उसने पे भी कर दिया 22,450 एंड उसको ऑनलाइन वहां पे प्रॉमिस होगी डेट ऑफ डिलीवरी वहां पे कि इस तारीख को आपको डिलीवर कर दिया। बट टू हर शॉक गिफ्ट नेवर अराइव्ड इवन आफ्टर रिपीटेड कॉल्स। शी ओनली हैड अ प्रॉमिस that it would be delivered soon and suddenly that website account was deleted from the photo sharing website and even the numbers went dead. उसके बाद में क्या, थोड़े दिनों के बाद में वहां पे everything they only said that delivered soon, it will be it would be delivered soon or suddenly, और एकदम क्या हुआ वहां पे कि वेबसाइट का अकाउंट डिलीट हो गया। वहां पे जहां से फोटो शेयर की गई थी वहां से भी सारा डेटा डिलीट हो गया वहां पे, एंड देन जिन नंबर से कॉल कर रहे थे वो नंबर्स भी बंद हो गए वहां पे। तो इस तरह के ऑनलाइन स्कैम बहुत सारे होते हैं वहां पे कि आपको एक फेक लिंक लिखा जाता है, वहां पे कहते हैं कि आपको ये इतना सस्ता मिलेगा आईफोन, वहां पे ये फोन जो 20,000 का है वो आपको 5,000 का मिला, 3,000 का मिल रहा है। ऐसे लिंक्स भी आपके फेसबुक पे आते हैं और हम उस पर क्लिक करके पेमेंट भी करते हैं। तो वहां पे क्या होता है, और वो चीज कभी भी हमारे enter personal information or any financial information on unsecured website। जिस वेबसाइट पे आप ट्रस्ट नहीं करते हैं वहां पे उन वेबसाइट पे अपनी फाइनेंशियल और पर्सनल इंफॉर्मेशन आप एंटर नहीं करें वहां पे। तो साइट दैट डू नॉट एम्प्लॉय HTTPS एंड डू नॉट हैव पैडलॉक साइन, उन वेबसाइट्स पे आप कभी भी अपनी पर्सनल और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंटर नहीं करें। नेवर रिप्लाई टू ईमेल फ्रॉम एनी अननोन और अनरिलायबल सोर्स। अगर कुछ अननोन लोगों के पास से आपके पास मेल आता है तो देन never reply to them. Never click on any link that you have received in your email or on any, even if you know the sender, rather open a browser window and type the URL yourself, then clicking on the link in the email। अब अगर आपके पास मेल पे या कहीं पे भी आपको लिंक आता है तो लिंक पे क्लिक ना करें वहां पे। जनरली क्या होता है, कई केसेस में क्या होता है, लिंक पे क्लिक किया और उसके अकाउंट से पैसे विड्रॉ हो गए। सो पैसे विड्रॉ हो गए वहां पे, तो वो चीज नहीं हुई है वहां पे। जनरली क्या होता है, हमारे पास लिंक आता है, हमें लगता है वो जेन्युइन है, बट वो आपको क्या करना है, प्रॉपर्ली पर्टिकुलर वेबसाइट को अपने हाथ से ही फिंगर से टिप टाइप करें वहां पे, एंड देन वहां पे उस वेबसाइट को एंटर करें। तो पर्टिकुलर लिंक जो दिया है उसको क्लिक ना करें वहां पे। नेवर रेस्पॉन्ड टू एन ईमेल और एडवर्टाइजमेंट क्लेमिंग यू हैव वॉन समथिंग।
और जहाँ पे आपको मेल आता है, एडवर्टाइजमेंट आता है कि आपने कुछ विन किया है वहाँ पे, तो उस वो चीज़ों का क्या करें, आप रिप्लाई नहीं करें वहाँ पे, ना ही अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन भेजें वहाँ पे। कई मेल आते हैं वहाँ पे कि आपको आपने $5 लाख की या 10 लाख $10 मिलियन की आपने लॉटरी जीत ली है आपकी। अब आपकी पैसे अकाउंट में ट्रांसफर करने हैं, उसके लिए आपको एक पर्टिकुलर चार्ज देना होगा, वहां पे चार्ज देती है आपके अकाउंट में इंफॉर्मेशन शेयर कर दी जाएगी वहां पे पैसे। Any fraudulent business practice that extract money from an unsuspecting ignorant person is called a scam। तो ये इस तरह के स्कैम होते हैं वहां पे। Illegal downloads. Illegal downloading refers to obtaining file for which you don't have rights to use और डाउनलोड फ्रॉम इंटरनेट। ऐसी फाइल्स को आप डाउनलोड करते हैं जो फाइल के लिए आपके पास राइट नहीं है डाउनलोड करने का। इट इज डाउनलोडिंग अ पेड डिजिटल आइटम, दैट इज जो पेड है आप उसको फ्रीली डाउनलोड करने की कोशिश कर रहे हैं वहां पे, विदाउट मेकिंग एनी पेमेंट, यूजिंग अ इलीगल वे टू डाउनलोड इट। फॉर एग्जाम्पल, if you are downloading a movie which is not available for free download, this is illegal download। Similarly, downloading copy of software license bypassing the legal measure is called illegal download। अगर आपने कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया वहां पे और उसको क्रैक करके आप यूज कर रहे हो वहां पे उसका फुल वर्जन, तो वो भी एक इलीगल डाउनलोड है। Most items that are protected under copyright law are available against a payment। जो भी कॉपीराइट लॉ के अगर अगेंस्ट प्रोटेक्टेड है वहां पे, तो देन उसके लिए आपको पेमेंट देना पड़ेगा। तो प्रोटेक्टेड इन्फॉर्मेशन के लिए आपको पेमेंट देना पड़ता है। तो वॉयलेटिंग दिस नोन एज इलीगल डाउनलोड। अगर कुछ कॉपीराइट से वहां बंधा हुआ है वहां पे उसके साथ में कॉपीराइट लॉ रिफ्लेक्ट कर रहा है, दैट मींस यू हैव टू पे समथिंग। फॉर एग्जांपल, a movie or a photograph or a video is copyrighted in favor of a creator, owner or producer। अगर किसी ने उसको कॉपीराइट करवा दिया, फोटो को, मूवी को, वीडियो को, तो फिर आप उसको फ्रीली यूज नहीं कर सकते, उसकी परमिशन के बिना आप उसको यूज नहीं कर। प्रोडक्ट इज प्रोटेक्टेड बाय कॉपीराइट लॉ, cannot be downloaded, copied, reproduced or resold without their permission। उस ओनर की परमिशन या क्रिएटर की परमिशन के बिना आप उसको रिक्रिएट, डाउनलोड, रिप्रोड्यूस, रीसोल्ड नहीं कर सकते। Whereas child pornography वहाँ पे defined as any visual or written representation that depicts or advocates sexual activity of anyone under the age of 18, that is child pornography। The law also includes some child nudity, simulated sex involving children, and any material that is computer doctored to look like child porn। तो 18 ईयर से नीचे जो भी है वहाँ पे ऐसी एक्टिविटीज, उसके लिए चाइल्ड पोर्नोग्राफी, और उसके लिए भी लॉ बना हुआ वहाँ पे। इन्फ्लुएंस आईटी एक्ट 2000 एंड इंडियन आईपीसी 1860 प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम चाइल्ड पोर्नोग्राफी। नेक्स्ट इज कंप्यूटर फोरेंसिक, that means digital forensic। or computer forensics refer to the methods used for interpretation of computer media for digital evidence। अब क्या होता है यहाँ पे सारे जो आपके क्राइम्स हो रहे हैं, ऑफेंसेस हो रहे हैं, दैट आर यूजिंग इंटरनेट एंड कंप्यूटर्स। दैट मीन्स हमारे पास जो फॉरेंसिक्स है, दैट मीन्स जो एविडेंस आएंगे वो डिजिटल फॉर्म में आएंगे, तो उन कंप्यूटर से आपको डिजिटल एविडेंस निकालने के लिए हम कंप्यूटर फॉरेंसिक्स को यूज करते हैं। वहां पे क्रिमिनल फॉरेंसिक यूज कर रहे हैं, हम यहाँ पे कंप्यूटर फॉरेंसिक यूज कर रहे हैं। To provide a legal system with a way to recover data from electronic or digital devices। तो ये आपके कंप्यूटर फॉरेंसिक्स जो है प्रोवाइड आवर लीगल सिस्टम, एक लीगल सिस्टम प्रोवाइड कर रहा है आपको कि आप उस पर्टिकुलर डिवाइस से डेटा को रिकवर कर सके वहां पे मेथड से। The computer forensics is a systematic process that interprets electronic data for use in court of law। That means as a evidence हम कोर्ट में उसको present कर सके वहाँ पे। The goal of process is to preserve any evidence in its most original form while performing a structured investigation by collecting, identifying and validating the digital information for the purpose of reconstructing past events। तो वो क्या करता है वहाँ पे, डिजिटल फॉरेंसिक, कंप्यूटर फॉरेंसिक रेफर्स टू मेथड यूज्ड फॉर इंटरप्रिटेशन ऑफ कंप्यूटर मीडिया फॉर डिजिटल एविडेंस। दैट मींस हम कंप्यूटर सिस्टम को पूरा वहाँ पे चेक करते हैं, देन डेटा कलेक्ट करते हैं वहाँ पे एज अ एविडेंस टू प्रेजेंट इन द कोर्ट ऑफ लॉ। Important practices of computer forensics। Computer forensics following acquire the evidence without altering or damaging the original। फर्स्ट एक्वायर करता डेटा इन एविडेंस या डेटा की बात कर रहे हैं यहाँ पे, विदाउट ऑल्टरिंग, उस डेटा को ऑल्टर नहीं करके, ना डैमेज करके वहां। सेकंड, ऑथेंटिकेट दैट योर रिकवर्ड एविडेंस इज सेम एज द ओरिजिनली सीज्ड डेटा। जो ओरिजिनली आपके ऑथेंटिक डेटा है वहां पे उसको जा रहे हैं आप दूसरा काम कर ले।
वही काम होगी, सर खुद कर रही है वो काम, छोड़ मुझे काम शुरू है। हाँ तुम्हारा काम है। Authentic that your recovered evidence is the same as the original seized data। तो ऑथेंटिकेट करना वहाँ पे कि जो हमने डेटा रिकवर किया यूजिंग कंप्यूटर फॉरेंसिक वो सेम है जो ओरिजिनल डेटा है वहाँ पे, उस पे सेम है या नहीं है। एनालाइज द डेटा विदाउट मॉडिफाइंग इट, डेटा को एनालाइज करना वहाँ पे, उसको बिना चेंज किए हुए वहाँ। तो फर्स्ट डेटा को आइडेंटिफाई करता है, फिर प्रोजेक्ट प्लानिंग डेटा कैप्चर करता है, फिर डेटा का प्रोसेस करता है, डेटा का एनालिसिस करता है, डिस्प्ले करता है, उसके बाद में रिजल्ट रिपोर्ट जनरेट करता है वहाँ पे डिजिटल फॉरेंसिक की। ये इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस है। साइबर लॉ एंड आईटी एक्ट जनरली हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आईटी एक्ट 2000 प्राइम पर्पस वाज टू प्रोवाइड लीगल रिकॉग्निशन टू इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स एंड टू facilitating filing of electronic record with government, provide the legal infrastructure for e-commerce in India। तो आईटी एक्ट जो है वहाँ पे 2000 प्रोवाइड किया गया, लेटर अमेंडेड इन दिसंबर 2008 में वापस उसको अमेंडमेंट किया गया वहाँ पे, आईटी अमेंडमेंट एक्ट 2008। और 27 अक्टूबर 2009 को भी आपके उसमें कुछ अमेंडमेंट्स किए गए। तो डिजिटल सिग्नेचर्स, ऑथेंटिक इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज, अमेंडमेंट टू अदर लॉज। ऑथेंटिकेशन ऑफ डिजिटल सिग्नेचर मींस ऑथेंटिकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स बाय डिजिटल सिग्नेचर गेट लीगल रिकॉग्निशन। आईटी एक्ट के थ्रू लीगल रिकॉग्निशन हुआ वहाँ पे, डिजिटल सिग्नेचर जो आप प्लेस कर रहे हैं ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स पे, आपके सर्टिफिकेट जो ऑनलाइन आपको इशू होते हैं उसके ऊपर एक साइन होता है वहाँ पे, वो डिजिटल सिग्नेचर्स होते हैं, तो उनको बोलते हैं हम डिजिटल, क्योंकि उन डॉक्यूमेंट्स क्योंकि वो ऑनलाइन ही आपको इशू किए गए हैं, दैट मीन उनके मैनुअल सिग्नेचर नहीं हो सकते, उसके लिए वो डिजिटल सिग्नेचर्स करते हैं वहाँ पे। फिर इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, ई डॉक्यूमेंट्स गेट लीगल रिकॉग्निशन, दैट मींस जो भी गवर्नमेंट के रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स है वहाँ पे वो भी इलेक्ट्रॉनिकली ऑनलाइन कंप्यूटर्स के थ्रू वहाँ पे ऑनलाइन वहाँ पे इंटरनेट पे डाल दिया जाए। डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड एज पर लॉ बाय एनी आर्म ऑफ गवर्नमेंट में बी सप्लाइड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के फॉर्म में हम डॉक्यूमेंट सप्लाई कर सकते हैं वहाँ पे, कोई भी गवर्नमेंट है वहाँ पे वो। ऑफिसर्स पेनल्टी, मैक्सिमम पेनल्टी फॉर एनी डैमेज टू कंप्यूटर और कंप्यूटर सिस्टम इज अप टू 1 करोड़। तो पेनल्टीज ही है वहाँ पे 1 करोड़ आपको compensation डालना देना पड़ेगा। अमेंडमेंट टू अदर लॉ, तो अदर रिलेटेड एक्ट सच एज इंडियन पिनल कोड आईपीसी 1860, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, द बैंकर्स बुक एविडेंस एक्ट 1891, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 वर बी अमेंडेड टू अलाइन देम विद आईटी एक्ट, क्योंकि इसको भी इन एक्ट्स को भी बाद में आपके अमेंडमेंट किया गया, उनमें कुछ चेंजेस किए गए वहां पे, क्योंकि हम ऑनलाइन सब कुछ कर रहे हैं। आप बैंकर्स बुक एविडेंस जैसे है वहां पे तो हम ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं बैंक के थ्रू भी, वहां पे भी हमें ऑनलाइन सब कुछ चाहिए, तो हमें कुछ आपकी लॉस को भी चेंज करना पड़ा, अमेंडमेंट करना पड़ा वहां पे। टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी, तो आईसीटी जनरली जो है enable greater efficiency in social and economic process, enhance the effectiveness of cooperation between, ये कोई जरूरी नहीं है, तो टेक्निकल टर्म नहीं है। तो इकोनॉमिक इम्पैक्ट जो आईसीटी है, इंटरनेट एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, वहाँ जो हम यूज कर रहे हैं डे टू डे लाइफ में, हम आईसीटी के थ्रू ही हम ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहे हैं वहाँ पे, तो आईसीटी हम यूज कर रहे हैं वहाँ पे। सारा कुछ है वहाँ पे। इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स क्या हुआ वहाँ पे, ग्लोबलाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट्स इन गुड्स एंड सर्विसेज, जो भी सर्विसेज है गुड्स है वहाँ पे वो ग्लोबली सब पूरे पूरे प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हो गई वहाँ पे। चेंजेस इन इंटरनेशनल ट्रेड एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क चेंज हुआ वहाँ पे, हम ऑनलाइन सब कुछ परचेज करने लगे वहाँ पे। पैटर्न ऑफ कंजप्शन भी चेंज हुआ वहाँ पे, कि पहले हम डेली अपने जो नियर बाई जो स्टोर्स थे वहाँ से प्रोडक्ट परचेज करते थे, अब हम ऑनलाइन कहीं पर भी कहीं से भी हम प्रोडक्ट मंगवा सकते हैं, कोई भी वेबसाइट से हम प्रोडक्ट बुक कर सकते हैं वहाँ पे। सोशल इम्पैक्ट क्या हुआ वहाँ पे, फ्रीडम ऑफ एनहांस द प्रोडक्ट, फ्रीडम ऑफ एक्सेस, न्यू पैटर्न ऑफ वर्क एंड ह्यूमन होम सेटलमेंट, changes in the relationship between government and citizen and the state and between citizens। तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज है ऑनलाइन कुछ करने लगा वहाँ पे, गवर्नमेंट की जो भी स्कीम्स आती है वो भी सारी ऑनलाइन होगी, सारे कुछ जो फॉर्म फिल होते हैं वो भी ऑनलाइन होते हैं, तो ट्रांसपेरेंट सारा कुछ ट्रांसपेरेंसी बढ़ गई वहाँ पे, ये सब चीजें वहाँ पे है। तो रिमेनिंग जो भी है हम कल डिस्कस करेंगे मंडे को, एंड देन आप सारे कुछ देख लें वहाँ पे, हर के दो दो पॉइंट बना लें हर पॉइंट्स के, क्योंकि एग्जाम में मोस्टली 2 और 3 पॉइंट्स पूछ जाते हैं, ज्यादा पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। इस कुछ पढ़ लें एक बार, रीडिंग करने के बाद में देख लें कि वहाँ इंपॉर्टेंट जो 1 और 2 पॉइंट्स है या 3 पॉइंट मैक्सिमम वहाँ बना के नोट कर लें।